Bismillahirrahmanirrahim. I am Yousaf Siddiqui, your course facilitator for retail management. So retailing क्या है? सबसे पहले इस टॉपिक को हम यहाँ से आगाज करेंगे. Retailing involves a process of selling goods and services to end consumer through different channels of distribution, and the objective of it is to earn profit out of it. तो अगर मैं इस डेफिनेशन को समराइज करने की कोशिश करूं 4 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर, तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है. दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इट इज प्रोडक्ट सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर, टू द यूजर की बात हो रही है. प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट और इट कैन बी अ सर्विस. तीसरे लेवल के ऊपर यहां पर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. Different channels of distribution includes a kind of virtual store also, a kind of physical store also. इसी तरीके से the fourth part of the definition is to earn profit, which is the main objective of the organization. Let me take you to another part of the definition. दूसरा part, if I say, तो आपके सामने you can see it on the screen also. Distribution of consumer products, we all know that starts from the producer and goes up till the consumer. So इस पूरे process के अंदर there is a middleman which is involved, and that middleman is called retailer, which means the journey from producer or the importer to the end consumer is actually you will find one party which is called a retailer. तो यहाँ पर you will find a close connect between a consumer and a retailer. So as a summary of the definition only, if I see it here, so retailing involves selling of goods as well as selling of services, or both, goods and services both, to the end consumer. People call it a B2B. Not B2B, it is a B2C. So what is B2B actually? We need to understand first, because it is business to business. But in this case, when we talk about retailing, it is actually B2C, which is business to the consumer. When a particular organization is selling their products or services to the end consumer, which is B2C, which is called B2C, it is called retailing in this perspective. All right. तो अब मैं आपको उस डायग्राम के ऊपर ले आया हूं, which will explain you different journeys that a producer will follow to reach to its customer. तो सबसे पहले आपके सामने if you see selling of products directly to the consumer. So पहले पार्ट के अंदर you can see a producer which is directly approaching a consumer. So there can be a lot of examples. For example, आपको देखते होंगे कोई हनी सेलर है, कुछ शहद को बेचने वाला है. So he is a producer at that time, and at the same time अगर वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल भी कर रहा है, so that producer will be also considered as a retailer. So there can be different roles जो कि एक प्रोड्यूसर के हो सकते हैं, जो कि एक रिटेलर के हो सकते हैं. So at the same time he is a producer as well as the retailer. So second way of reaching to the consumer is where a producer involves a retailer into the whole process. इस तरह के केस के अंदर प्रोड्यूसर सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स को टू द रिटेलर, एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है टू द एंड कंज्यूमर. देन देयर इज अ थर्ड पार्ट, जिस तरीके से प्रोड्यूसर इन्वॉल्व करता है एक और इंटरमीडियरी को, जिस तरीके से हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया कि द रिटेलर इज वन ऑफ द इंटरमीडियरीज, इसी तरीके से होलसेलर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरमीडियरीज इन द होल प्रोसेस. तो यहां पर अगर हम देखते हैं, सो प्रोड्यूसर सेल इट्स प्रोडक्ट टू द होलसेलर्स, होलसेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू द रिटेलर, एंड देन रिटेलर ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा है टू द एंड कंज्यूमर, टू द फाइनल यूजर. यू विल सी दैट, और बहुत सारे केसेस के अंदर यू विल ऑब्जर्व ऑल्सो कि देर आर सम केसेस जहां पर प्रोड्यूसर के साथ, होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ के दरमियान में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है एज एन इंटरमीडियरी, जो कि सम टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर का तौर पे कहलाती है. जिस तरीके से उस तरह के सिनेरियो में व्हाट वुड बी द चेन प्रोसेस, इट वुड बी लाइक के प्रोड्यूसर विल बी सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इस केस के अंदर सेल कर रहा होगा द प्रोडक्ट्स टू दी होलसेलर, एंड होलसेलर विल बी सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर, एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा टू द एंड कंज्यूमर. इसके एग्जांपल को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. जिस तरीके से लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नेस्ले इन पाकिस्तान. सो लेट्स से और यूनिलीवर इन पाकिस्तान. सो नॉर्मली व्हाट दे डू, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर. दे हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन डिफरेंट सिटीज, इन टू डिफरेंट प्रोविंसेस. वो डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल करते हैं प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट होलसेलर्स, and then let's say into different wholesale markets.
एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से लाहौर के अंदर इट इज शालम मार्केट, इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इट इज डनकारी बाजार। सो ये तमाम होलसेल मार्केट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर होलसेलर्स मौजूद हैं। सो वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है प्रोडक्ट्स को टू दी होलसेलर एंड देन होलसेलर टू द रिटेलर। अब इस तरह के लेट्स से नेस्ले की बात करते हैं या यूनिलीवर की बात करते हैं और पीएनजी की बात करते हैं, इस तरह के केसेस के अंदर वो रिटेलर कौन है? एक जनरल और किराना स्टोर वाला जो कि एक मॉम एंड पॉप शॉप है। तो वो रिटेलर देन प्रोडक्ट को सेल करता है आपको और मुझे, क्योंकि आप और मैं हैं कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करना है।